नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 21। अम्बरीश महाराजा offended by Durvasa Muni. एवं सदा कर्म कलापम आत्मनः परे अधियज्ञे भगवती अधोक्षजे सर्वात्म भावं विदधन् महिमिमां तन्निष्ठा विप्राभिहितः सशासः। एवं सदा कर्म कलापम आत्मनः परे अधियज्ञे भगवति अधोक्षजे सर्वात्म भावं विदधन् महिमिमां तन्निष्ठ विप्राभिहितः सशासः। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परे धियज्ञे भगवति अधोक्षजे सर्वात्म भावं वद्विदधन् महिमिमां तन्निष्ठ विप्राभिहितः सशासः। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परे धियज्ञे भगवति अधोक्षजे सर्वात्म भावं विदधन् महिमिमां तन्निष्ठ विप्राभिहितः सशासः। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परे धियज्ञ भगवति अधोक्षजे सर्वात्मा भावं विदधन् महिमिमां तन्निष्ठ विप्राभिहितः सशासः। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परे धियज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्म भावं विदधन् महिमिमां तन्निष्ठ विप्राभिहितः सशासः। एवं सदा कर्म कलाप
मनः एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परेधि यज्ञे भगवते धोक्षजे परेधियज्ञे भगवति अधोक्षजे सर्वात्म भावं विदधन्महिमिमः सर्वात्मभावं विदधन्महिमिमां तनिष्ठ विप्रः विहित ससाहः तन्निष्ठ विप्राभिहितः सशासः एवं सदा कर्म कलापमात्मनः एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परेधि यज्ञे भगवति अधोक्षजे परेधियज्ञे भगवति अधोक्षजे सर्वात्मभावं विदधन्महिमिमां सर्वात्मभावं विदधन्महिमिमां तन्निष्ठ विप्राभिहित शशासः तन्निष्ठ विप्राभिहितः सशासः एवं दस लिविंग अ डिवोशनल लाइफ living a devotional life, सदा ऑलवेज कर्म कलापम karma kalapam, द प्रेस्क्राइब्ड ऑक्युपेशनल ड्यूटीज the prescribed occupational duties एज ए क्षत्रिय किंग as a Kshatriya king, आत्मनः Atmanah ऑफ हिमसेल्फ of himself, पर्सनली personally, द हेड ऑफ स्टेट the head of state. परे Pare unto the supreme transcendence into the supreme transcendence. adhyagye Adhiyagye unto the supreme proprietor, unto the supreme proprietor, the supreme enjoyer, the supreme enjoyer. Bhagavati Bhagavati unto the supreme personality of Godhead, unto the supreme personality of Godhead. Adhokshaje Adhokshaje unto he who is beyond material sense perception, unto he who is beyond material sense perception. Sarva Atma Bhavam, Sarva Atma Bhavam, all different varieties of devotional service. all different varieties of devotional service. Vidhat, Vidhat, executing, executing, offering, offering, Mahim, Mahim, the planet Earth, the planet Earth, Imam, Imam, this, this, Tatanistha, Tatnishta, who are faithful devotees of the Lord. who are faithful devotees of the Lord. Vipra, Vipra, by such Brahmanas, by such Brahmanas, Adhitah, Abhihita, directed, directed, Sasasa, Shashasa, ruled, ruled, Ha, Ha, in the past. in the past. Please repeat after me. In performing his prescribed duty as a king, In performing his prescribed duties as king, Maharaj Ambarish always Maharaj Ambarish always offered the results of his royal activities offered the results of his royal activities to the Supreme Personality of Godhead, to the Supreme Personality of Godhead, Krishna, Krishna, who is enjoyer of everything who is the enjoyer of everything and is beyond the perception of material senses. and is beyond the perception of material senses. He certainly took the advice He certainly took the advice from the Brahmanas, from the Brahmanas who are faithful devotees who were faithful devotees of the Lord. of the Lord. And thus he ruled the planet Earth without difficulty. And thus he ruled the planet Earth without difficulty. Purport by his divine grace, Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai. Chaitanya Prabhu, read. As stated in the Bhagavad Gita 5.29, Bhoktaram yajna tapasam sarva loka maheshwara suhridam sarva bhutanam vyapam ankrantam vrichyati. People are very much anxious to live in peace and prosperity in the material world. And here in the Bhagavad Gita, the peace formula is given personally by the Supreme Personality of Godhead. Everyone should understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, is the ultimate proprietor of all the planets, and is therefore the enjoyer of all activities, political, social, cultural, religious, economic, and so on. The Lord has given perfect advice in the Bhagavad Gita, and Ambarish Maharaj, the ideal executive head, ruled the entire world as a Vaishnava, taking advice from the Vaishnava Brahmanas. The Shastras enjoin that even though Brahmana may be very well versed in the occupational brahminical duties,
and may be very learned in Vedic knowledge, he cannot give advice as a guru until he is a Vaishnava. Satkarma nipuno vipro mantra tantra visharadha avaishnavo guru nasyat Vaishnava svapacho guru. Therefore, as indicated here by the words Tanishtha Viprabhita, Maharaj Ambarisha took advice from the Brahmanas who were pure devotees of the Lord, for ordinary Brahmanas who are merely learned scholars or experts in performing ritualistic ceremonies are not competent to give advice. Purushottam. In modern times, there are legislative assemblies whose members are authorized to make laws for the welfare of the state. But according to this description of the kingdom, Maharaj Ambarish, the description of the kingdom of Maharaj Ambarish, the country or the world should be ruled by a chief executive whose advisors are all devotee Brahmanas. Such advisors or members of the legislative assembly should not be professional politicians, nor should they be selected by the ignorant public. Rather, they should be appointed by the king. When the king, the executive head of the state, is a devotee and he follows the instructions of devotee Brahmanas in the ruling the country, everyone will be peaceful and prosperous. When the king and his advisors are perfect devotees, nothing can be wrong in the state. All the citizens should become devotees of the Lord, and then their good character will automatically follow. Yasyasti bhaktir bhagavatya kinchana sarvair gunais tatra samasate surah haravabhaktasya kuto mahadguna manorathena sati dhavato bhati. Harshika. One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods. But one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. Citizens under the guidance of a Krishna conscious king will become devotees, and then there will be no need to enact new laws every day to reform the way of life in the state. If the citizens are trained to become devotees, they will automatically become peaceful and honest. And if they are guided by a devoted king, advised by devotees, the state will not be in the material world but in the spiritual world. All the states of the world should therefore follow the ideal of the rule or administration of Maharaja Ambarish as described here. Om Ajnanam Timirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshunmitam Ena Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhishtam Asthapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Kadam Ahiyam Dadati Swapadantikam Vande Aham Sri Guru Sri Utpada Kamalam Sri Gurun Vaishnavansya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakhanvitansi. He Krishna Karuna Sindhu Din Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brinda Baneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Siddhu Yevacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauru Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Evam Sada Karma Kalapam Atmana Pare Adhyagye Bhagavati Adhokshaje Sarvatma Bhavam Vidhan Mahimimam Tan Nishtha Viprabhihitah Sasasa. In performing this prescribed duties as a king, Maharaj Ambarish always offered the results of his royal activities to the Supreme Personality of Godhead Krishna, who is enjoyer of everything and is beyond the perception of material senses. He certainly took advice from Brahmanas
who were faithful devotee of Lord, and thus he ruled the planet Earth without difficulty. हरे कृष्णा. So मैं हिंदी बोलूँ कि हिंदी? हरे कृष्णा. तो सर्वप्रथम मैं परम पूज्य अनंत रूप प्रभु का आभार प्रकट करता हूँ कि एटलीस्ट हमारे क्लास में उपस्थित हुए हैं, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ. तो हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं अगर हम 24 घंटे भक्ति करेंगे दूसरा काम कैसे होगा. तो हम महान वैष्णव जैसे अम्बरीश महाराज के चरित्र से सीख सकते हैं. अम्बरीश महाराज केवल भक्ति में सीरियस नहीं थे, लेकिन वो महाभागवत थे. महाभागवत कभी भी भक्ति के अंग को निगलेक्ट नहीं करता है. ऐसा कहा गया है कि महाभागवत के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होता है, वो साधक नहीं है, सिद्ध है. तो अम्बरीश महाराज सिद्ध भक्त थे, साधक नहीं थे. लेकिन वो साधन अपना बहुत सिस्टमेटिक छोड़ते नहीं थे. हम लोग ने सुना किस प्रकार से एक एक आइटम, एक एक अंग को अपने भगवान की सेवा में लगाते थे. तो इससे ये शिक्षा हमको मिलती है कि अगर भक्ति में कोई ऊंचा हो जाए, आगे बढ़ता जाए, तो यदि वो भक्ति के अंगों को छोड़ता है तो उसका पतन हो जाता है. तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए. स्पेशली जो साधक से ऊपर जा रहा है, हमेशा अपने चाहे उच्च कोटि के स्तर पर भी आप एक एक चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक करता है. हालांकि उसको आवश्यक नहीं है, फिर भी दूसरों को शिक्षा देने के लिए हम प्रभुपाद जी के जीवन से सीख सकते हैं किस प्रकार से वो बहुत हर चीज़ साधक के अनुसार करते थे. हालांकि वो सिद्ध पुरुष थे. हम हिजोलेंस गोपाल कृष्ण महाराज के जीवन से सीख सकते हैं कितना एक एक चीज़ कितने वो ध्यान से करते थे, कभी निगलेक्ट नहीं करते थे. और प्रभुपाद जी का लाइफ स्टाइल देखिए, उनका एक एक चीज़ भक्ति में होता था. किसको कैसे गाइड करना है, क्या यह प्रसाद खाना भी भक्ति था उनका. तो यहाँ हम देखते हैं कि हम हमेशा भक्तों का जीवन चरित्र हमारे लिए उदाहरण होता है. और इसलिए कभी भक्त जो है कभी इमोशनल व्यवहार नहीं करते. इमोशनल व्यवहार नहीं कर. कभी कभी कोई बहुत इमोशन में आते हैं, तो अगर भक्त इमोशन में रहते हैं लेकिन वो कंट्रोल करते हैं, हमेशा कंट्रोल करते. चतुर महापुरुष स्वयं भगवान थे. जब देखते थे सामान्य व्यक्ति को तो अपने इमोशन को बस में कर लेते थे. तो अम्बरीश जैसे भक्त जो है हमेशा भाव में रहते हैं, हमेशा एक एक लीला का स्मरण करके उनकी लीला में प्रवेश करते हैं. तो फिर भी जो अपनी ड्यूटी है, एक राजा की ड्यूटी तो असाधारण ड्यूटी नहीं होती है. वो अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूपेण निभाते हैं. तो जैसे भक्त होते हैं, हम सब भक्त हैं. कोई भक्त पिता है, कोई माता है, कोई पुत्र है, कोई पत्नी है, जो है. लेकिन भक्त होने का अर्थ नहीं हो कि अपने कर्तव्य को मत निभाओ. ये बहुत भक्त बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है काम में, नहीं करूँगा. ये गलत है. नहीं लगता है फिर भी करना चाहिए, क्योंकि आप कर्तव्य से बंधे हो. आपने एक ड्यूटी लिया है. हालांकि भक्त की ड्यूटी में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको हेल्प करने के लिए बहुत ऋषि महर्षि देवी देवता होते हैं, ऐसा जीव गोस्वामी बोलते हैं. लेकिन फिर भी भक्त जो है अपने पुत्र का बहुत सावधानी से देखभाल करता है. ऐसा नहीं कि भगवान के ऊपर छोड़ देता है, भगवान ने दिया है भगवान करेंगे. ऐसे बहुत लोग सोचते हैं, है कि नहीं. जैसे अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का प्रसाद बनाना, भोजन बनाना कर्तव्य करना. हालांकि देश काल के अनुसार है, अमेरिका है, उस अनुसार सबको अपना ड्यूटी निभाना चाहिए आपस में. तो कहने का अर्थ है यहाँ एवं, मतलब एवं का अर्थ है पिछले श्लोक से संबंधित है कि इस प्रकार से वो मन कृष्ण, हमेशा मन उनका कृष्ण में लगा रहता था. वाणी कृष्ण का गुणगान करती थी, कान कृष्ण का श्रवण करता था, आँख कृष्ण का दर्शन करती थी,
वैष्णव का दर्शन करती थी। नाग जो है भगवान के चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी का सुगंध लेती थी। पैर मंदिर में जाता था, धाम में जाता था, भक्तों की रक्षा के लिए जाते थे। तो हाथ जो है मंदिर करो, हर मंदिर का मार्जन करते थे। इतना हर चीज करते हुए भी यही भक्त का गुण है। भक्त की शक्ति, भगवान की शक्ति असीम होती है और भक्त की शक्ति भी असीम होती है। कृष्ण भक्त कृष्ण शक्ति धरे, अपराध कैले कृष्ण शक्ति करे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वृंदावन ठाकुर लिखते हैं अपने महान ग्रंथ में, कहते हैं भक्त, कृष्ण भक्त जो है कृष्ण की शक्ति धारण करता है, और जब अपराध करता है तो कृष्ण शक्ति धरे, भगवान शासन करते हैं। जैसे बच्चा जो है कृष्ण का अपने पिता का प्रतिनिधि है, वो पिता की शक्ति को धारण करता है, लेकिन जब बच्चा अपराध करता है तो पिता उसको सजा देते हैं। वो सजा देते हैं पनिशमेंट दुख देने के लिए नहीं, उसे करेक्ट करने के लिए। ये अंतर है। एक सजा होती है किसी को डाउन करने के लिए, और एक सजा होती है किसी को उठाने के लिए। भक्त कभी भी, भगवान कभी भी अपने भक्त को डाउन करने के लिए सजा नहीं देते हैं। ये मटीरियल कॉन्शियसनेस है। भक्त और भगवान दोनों, भक्त भी जब किसी को सजा देते हैं तो उनको उनके उद्धार के लिए होती है, और भगवान भी सजा, क्योंकि जो भगवान का गुण है, प्रभुपाद ने कहा यस्यास्य भक्ति, भक्तों में आता है। तो भगवान का गुण भक्तों से अनुभव किया जाता है। भगवान का प्रेजेंस भक्तों के प्रेजेंस से अनुभव होता है, उनके साधन से, उनका भजन से, वो कैसे क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या कार्य करते हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा किन प्रभाषित ब्रजेंत च, कहते हैं जो भक्ति में फिक्स है, ये इमोशनल नहीं है मैं फिक्स हूं, नहीं, बोलने से नहीं होता है। कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, आध्यात्मिक है कि मटेरियल है, और कैसे उठता है, बैठता है। आज सदाचार, भक्त का सदाचार अलग है। तो भक्त को हमेशा उसके सदाचार से पहचाना चाहिए। सदाचार से, सदाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। सदाचार सत आचरण, सदाचार करता है साधुओं का आचरण नया भक्त करता है, उसको सदाचार कहते हैं। और सत तो भगवान है, तो भगवान का गुण सब भक्त में आता है, उसके अनुसार वो आचरण करता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से वो हमेशा 24 घंटे भक्ति कर, सदा हमेशा करते रहते थे। लेकिन कर्म कलापम आत्मन, अपने कार्य में वो अपने ड्यूटी को कभी निग्लेक्ट नहीं करते थे, कभी भी निग्लेक्ट नहीं करते। एक साधन होता है, एक आप साधन आपके खुद के लिए है, एक आप खुद के लिए, अपने खुद के लिए करते थे। जैसे एक साधन होता है, हर व्यक्ति, कोई निराजल एकादशी फास्ट करता है, कोई 16 माला करता है, कोई 32 माला करता है, कोई, एक खुद का साधन है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि अपना साधन ही करते रहो, अपनी ड्यूटी छोड़ दे, भूल जाओ, साधन ही करते रहो, इसका अर्थ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कर्म कलापम आत्मन, कहते हैं वो प्रेस्क्राइब ड्यूटी, ऑक्युपेशनल ड्यूटी। प्रेस्क्राइब ड्यूटी मतलब छत्री थे, छत्री की ड्यूटी। इसका अर्थ है आप पत्नी है तो आपकी ड्यूटी, कोई पति है तो उसकी ड्यूटी, पुत्र है तो उसकी ड्यूटी, ब्राह्मण है तो उसकी ड्यूटी, वैश्य क्षत्रिय है, वैश्य है, आप इसको प्रेस्क्राइब ड्यूटी कहते हैं। तो कभी भी अपने ड्यूटी को छोड़ना नहीं चाहिए। और ये तो दूसरी जगह ऐसा भी वर्णन है, भक्त को पता नहीं चलता लेकिन सिस्टमेटिक अपनी ड्यूटी करता रहता है, करता रहता है। वो चलता है, उठता है, बैठता है, भोजन करता है, सर्विस करता है, ऑटोमेटिक चल करता है। और कहते हैं कि वो क्षत्रिय थे और परे अधियज्ञ। अब यहां परे का अर्थ है दिव्य, अधियज्ञ का अर्थ होता है सुप्रीम प्रोप्राइटर। भगवान सब कुछ उनका है, वही मालिक है,
तो अब भागवत यथोक्षज, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन्हें पूर्ण ज्ञान था। ये अब देखिए यहां बहुत अच्छा अर्थ निकलता है कि उनको पूर्ण ज्ञान था कि भगवान मालिक है। हालांकि जब व्यक्ति को आपुलंस आ जाता है तो ज्ञान भूल जाता है, वो सोचता है मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, मैं। तो जब तक हम लोग को पूर्ण ज्ञान हो कि भगवान मालिक है, ये बच्चे भगवान के हैं, मकान भगवान का है, हमारे पास जो विद्या है भगवान की दिया है, ये तब वो व्यक्ति माया में नहीं जाता है। वो विद्या उसके लिए बाधक नहीं है। इसको कहते हैं पॉइजनस टीथ हैज ब्रोकन, जहरीला दांत टूट गया है। ये जहरीला दांत टूट गया है कहने का मतलब इंजॉयमेंट की भावना खत्म हो गई है। क्योंकि जो अगर है वास्तव में, ये तो सत्य है, हमारा है क्या, इस संसार में जो भी देखते हैं कहते भूमि आपो अनल वायु खम मनो बुद्धि ये वच, जो भी आप देख रहे हैं भूमि अग्नि जल वायु आकाश, ये तो उनका ही है। तो ये तो ज्ञान होना वास्तविक ज्ञान है। जो ये ज्ञान रहता है पूरी पृथ्वी उसके पास है तो भी माया में नहीं जाएगा। यही तो है, पूरे पृथ्वी के राजा थे। अगर ये ज्ञान नहीं है, आपके पास $5 है तो भी आप नरक में जा सकते हो। वो $5 नरक में ले जाएगा, लेकिन $5 बिलियन भी आपको बचाएगा, नरक में नहीं ले जाएगा। केवल भावना, कॉन्शियस। तो भक्ति मीन्स चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट्स ऑल। डिवोशनल सर्विस मीन्स चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, दूसरा कुछ है नहीं। ये हमारा है, भक्ति का अर्थ है ये नहीं भगवान का। ये समझना ही नहीं केवल इनफ है, भगवान का है कहने का उनकी सेवा में लगाना है। ऐसा नहीं कहना सबका भगवान है और भगवान को केवल एक शक्कर टुकड़ा लगा दो भोग और खूब मालपुआ भोग खाओ आराम से, इसको भक्ति नहीं है। अगर आपको रियलाइजेशन है कि भगवान का है तो उनकी सेवा में लगना चाहिए, उनकी सेवा में लगना चाहिए। इसको कहते हैं भक्ति। और कहते हैं भागवत अधोक्षजे, भगवान तो अधोक्षज हैं अपने इंद्रियों, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, अपने इंद्रियों से उनको समझ, इसलिए अधोक्षज हैं। लेकिन वो अधोक्षज हमारी इंद्रियों के बस में हो जाते हैं जब हम इंद्रियों से उनकी सेवा करते हैं। हालांकि आप देखिए कहते हैं कि ये इंद्रियां अपूर्ण हैं, परफेक्ट नहीं है, और भगवान परफेक्ट हैं, इसलिए हम इस इंद्रियों से सेवा नहीं कर सकते। लेकिन वास्तव में भक्ति ऐसा साधन है, इंद्रियों से ही सेवा की जाती है। इसलिए नारसी कहते हैं सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम भक्ति उच्यते। और ये इंद्रिया जो इम्परफेक्ट है, जब कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो परफेक्ट होने लगती है। ये इम्परफेक्ट है। जैसे कोई भी चीज, वस्तु, मटेरियल जो है इम्परफेक्ट होती है, लेकिन जब भक्ति चीज का संबंध कृष्ण से होता है तो वो परफेक्ट हो जाती है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे आयरन रॉड, लोहे का, लोहा आग में डाला जाता है, आग हो जाता है, लाल हो जाएगा, लाल लाल होकर आग हो जाएगा। तो सेम आंख, सेम कान, सेम हाथ पांव, सब कुछ जब भगवान की सेवा में लगते लगते शुद्ध होती हैं तो परफेक्टली कार्य करती है। तभी तो इंद्रियों से भगवान को हम बस में कर लेते हैं, इंद्रियों से भगवान को हम पकड़ लेते हैं। आंख से देख के पकड़ लेते हैं, कान से सुन के पकड़ लेते हैं, जीवा से उनका प्रशंसा करके उनको बस में कर लेते हैं। वो पिघल जाते हैं भगवान जब उनकी प्रशंसा, इसी इंद्रियों से। क्योंकि ये भक्ति प्रोसेस ऐसे है हमारी इंद्रियों को, यहाँ तक कि ये शरीर जो है भले भौतिक है लेकिन आध्यात्मिक रूप से काम करने लगती है। ये मायावादी लोग को ये बातें समझ में नहीं आती, इम्पर्सनलिस्ट, उनके दिमाग में नहीं प्रवेश करती। उनके जब प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु जब बहुत उनको निंदा कर रहे थे, बहुत निंदा कर रहे थे, इवन प्रकाशानंद तो थोड़ा दूर के थे, सार्वभौम भट्टाचार्य तो बहुत नजदीक थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जब बात करने लगे अपने जीजा से, गोपीनाथ आचार्य से, तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु को सिखाऊंगा, वेदांत पढ़ाऊंगा, अच्छे आश्रम में प्रवेश कराऊंगा। उनका आश्रम थोड़ा नीचा है, ये देखो ऊंचा नीचा, ये मटीरियल प्लेटफॉर्म।
वो इतने बड़े विद्वान पर मटेरियल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। जो इतने बड़े विद्वान सबको, सन्यासियों को वेदांत पढ़ाते थे, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस मटेरियल है, क्योंकि वो सोचते हैं कि आश्रम तो मटेरियल होता है, आश्रम स्पिरिचुअल नहीं होता है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बानप्रस्थ, संन्यास मटेरियल आश्रम है, स्पिरिचुअल नहीं है। तो कहते हैं, गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आप उनको जानते नहीं हो, वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कैसे भगवान, इतने बड़े विद्वान वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, और तुरंत कहते हैं कि आपको कैसे पता है भगवान है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं मैं सत्य वस्तु को मुझे ज्ञान है, इसलिए उनकी कृपा हमारे ऊपर है। कृपा के बगैर हम भगवान का ज्ञान नहीं। अथापिते देव पदाम भजम प्रसाद ले सान गृहित जाना थी तत्व भगवान। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हम उनको समझ नहीं सकते। कृपा बिना, कृपा के बगैर हम समझ नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते। तो वही कहते हैं जब कृपा हो जाएगी आपके ऊपर, तो जो मैं बात बोल रहा हूं वही आप दोहराओगे। और सत्य हुआ जब चैतन्य महाप्रभु कृपा हुई सार्वभौम भट्टाचार्य पर, तब खुद कहते हैं मैं तो कौवे जैसे काम करता था लेकिन अभी गोपीनाथ आचार्य कृपा से मैं कोयल जैसे बोल रहा हूं। कौवे जैसे मतलब गांधी जी पीछे बैठ के बोलना, खाना पीना, यही मेरा का सब काम था। कहते भागवती अधोक्षज, जो भगवान अधोक्षज हैं, जो भोक्ता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कोटेस करते हैं भगवत, भोक्तारम जगत सर्वलोक महेश्वर सुहृदम। कितना सुंदर हो, सुहृदम। भगवान हमारे सुरहित हैं। संसार में बहुत लोग मित्र मिलते हैं, कोई सुरहित नहीं होता है, कोई अपना स्वार्थ का मित्र होता है। लेकिन भगवान रियली सुरहित हैं। जीव को क्या चाहिए भगवान जानते हैं, वो देते हैं जो भी अगर उनका भक्त, तो भगवान इतने हैं, उनके भक्त को जो भी चाहिए भगवान सब कुछ देते हैं। जैसे सुदामा आए द्वारका में, हालांकि उनको कुछ नहीं चाहिए था, अनाभिलाषिता शून्यम भक्त, लेकिन पत्नी के आग्रह से धन मांगने आए, लेकिन शरम बस मांग नहीं सके। आप देखिए भगवान, आप सोचे शरम बस, वो सोचे कैसे भ्रमित हो गए, कैसे मांगू। यहाँ कभी कभी हम लोग बहुत संपन्न व्यक्ति के पास जाते हैं तो मांग नहीं पाते, शर्मा जाते हैं, कितना मांगना है, कैसे मांगना है। वो तो ये तो हम मांगने, वो तो मांगने आए नहीं थे, लेकिन पत्नी बोली थी तो क्या करें, लेके आए। लेकिन भगवान इतने सुरहित हैं, मांगे बगैर उनकी पूजा किया, उनके चरण का पानी अपने सर पे रख छिड़का, सब घर में और बगैर मांगे सब कुछ दे दिया। चैतन्य चैतन्य बड़ा है, बगैर भगवान मांगे सब कुछ देते हैं। जो मांगता है उसको उतना ही मिलता है जितना मांगता है। जो मांगता है उसको भी भगवान देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते। लेकिन जो बार बार मांगता है, भागवतम वर्णन है, आप पढ़े होंगे, उसको भगवान नहीं देते एक बार तो पूरा कर देंगे आपको, चलेगी कि वो तो हैबिट हो जाए। जैसे बच्चा पिता के पास बार बार रो के जाए, मांगे, रो के मांगे, पिता बोले क्या बात है, हमने इसको इतना पढ़ाया लिखा कुछ, फिर भी रोता ही रहता है। तो सेम चीज भगवान सोचते हैं, क्या बात है, मैंने सब कुछ वर्णन कर दिया भगवत भागवतम में, इसके हृदय से भी सब विकार है, फिर भी वही इसलिए भगवान के बीच, भक्तों के बीच बड़ा कंपटीशन होता है, बहुत ही कंपटीशन होता है। उच्च कोट के भक्त की बात कर रहा हूं, तो इतना कंपटीशन होता है कि भगवान चाहते हैं कि जब कोई मांगता नहीं है तब, ऐसी भक्ति बात कर रहा हूं, वो चाहते हैं कि कब मैं इसकी पूछूं, कुछ तो मांगे, इसको दो, उसको दो। और भक्त सोचता नहीं, कभी नहीं मांगूंगा, कभी भी नहीं मांगूंगा। भगवान हार जाते हैं, भक्त जीत जाता है।
नैरोबी में ऐसे घटना हुई हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के संबंध में, शायद मैं बताया भी था आपको। तो एक बार महाराज मुस्लिम रथ यात्रा में आया किया करते थे, तो मुझसे वहाँ एक भक्त थे, अभी नाम नहीं लूँगा पहले नाम लिया था हमको अमृता के वो नाम मत लिया करो किसी से तो वो उन्होंने हमको फ़ोन किया, महाराज का आप शाम को हमारे घर पे लाओ। तो मैं महाराज से पूछा, महाराज जी बोले ठीक है चलेंगे हम शाम को। प्रोग्राम नहीं था, जैसे प्रसाद ऐसे खाना, वो पर्सनल प्रीचिंग। तो फिर एक दूसरा व्यक्ति 5 बजे आया, 7 बजे का प्रोग्राम था, 5 बजे मिलने आया। तो महाराज सबसे पूछते ना क्या हाल चाल है, क्या समाचार है, कंट्री में सिक्योरिटी कैसे, वो भी पूछ लेते थे तो बोला महाराज बहुत इसमें प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी ठीक नहीं है, कहीं भी कोई गाड़ी को हाईजैक कर लेते हैं, गन दिखा के ले लेते हैं। और महाराज बोलते हैं ये रास्ते जिधर जाना था, महाराज बोलते वो रास्ता एरिया कैसा, वो तो बोलता बहुत और डेंजरस है क्योंकि उसी एरिया में वो भी रहते थे। महाराज चुप हो गए, तो वो चले गए। महाराज बोलते हमको बुला के, मैं बैठा ही था, कहते हैं कि उमापति उसको फ़ोन कर दो कि मैं नहीं आऊँगा मैं बोला महाराज जी मैं फ़ोन नहीं कर सकता, वो लोग तो ब्रिटिश जैसे लोग हैं, तुरंत नाराज़ हो जाएंगे और मैं फ़ोन नहीं करूँगा। बोलते नहीं तुम नहीं करोगे, तुम फ़ोन लगाओ, मैं उनको बोल देता हूँ तो मैं फ़ोन लगाया। ये मतलब शिक्षा की बात है महाराज। देखिए सरल जीवन है, लेकिन हम कितना लेसन ले सकते हैं, मेरे कहने का उदाहरण है, उदाहरण कि सरल जीवन है, उनको सिंपल है। कोई सोचेगा मैं क्यों बोलूँ, मैं डर रहा हूँ, लेकिन भक्त का ऐसा नहीं होता है। महाराज का जीवन बहुत सिंपल है। वो शिक्षा कितनी है, तो हमको बोलते मैं बात करूँगा। महाराज ने फ़ोन लगा के दे दिया, बोलते भाई मैं थोड़ा स्कैर्ड हो गया, सिक्योरिटी किसी ने हमको बताया बहुत प्रॉब्लम है, मैं आपके घर पे नहीं आ सकता। वो बोले ठीक है महाराज कोई प्रॉब्लम नहीं, फ़ोन पे बोल दिए। लेकिन सुबह पहुंच गए भागवतम क्लास में दोनों भाई और भागवतम क्लास के बाद महाराज जब जैसे प्रणाम करके फिर रूम में गए तो हमको बोलते महाराज से मिलना। बोला चलिए, तो ले गया मैं उनको, बैठते हैं, तो बैठे प्रणाम करते हैं, बैठते हैं, तो तुरंत ही हालचाल भी नहीं पूछे, वो लोग का बर्निंग क्वेश्चन था महाराज को बोलते हैं कि महाराज जी कोई मैं सुना हूँ साथ में साधु तो डरते नहीं है। एक ढंग से कहे कि आप कैसे साधु हो साधु तो डरते नहीं है, आप डर गए। महाराज बोलते बात ये सत्य है, साधु डरते नहीं, भगवान साधु की रक्षा करते हैं, ये सत्य है। लेकिन मैं भगवान को मौका नहीं देना चाहता हूँ तो आके मेरी रक्षा करें, मैं खुद अपना ध्यान रखता हूँ, मैं उनसे सेवा नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसे बोले। मैं भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, उनकी बुद्धि से ही मैं अपना रक्षा करता हूँ, प्लान करता हूँ। मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, जाऊँ भगवान आके मेरी रक्षा कर देंगे भगवान ने बुद्धि दिया है, हमको पता है कि रास्ता डेंजरस है, मैं क्यों जाऊँ, भगवान का भक्त मैं जाऊँगा, क्या होगा, ये तो मूर्खता है। तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, वो लोग बहुत संतुष्ट हो गए। तो कहने का अर्थ भगवान बात सत्य है, भगवान हमेशा अवसर देखते हैं अपने भक्तों की सेवा करने का। और भक्त कभी भी, इवन सनातन गोस्वामी के जीवन में भी आप पाएंगे, जब तेरी कदम कदम पर सनातन गोस्वामी के जन्मदिन पर रूप गोस्वामी कहे मेरे बड़ा भाई है, कहीं से अगर अच्छा राशन पानी मिल जाए, तो सब तो बाबा जी थे, कुछ था नहीं, तो आज हम उनके जन्मदिन पर अच्छा बनाऊं। जैसे इच्छा किए, एक छोटी सी बालिका आ गई, सब सामान लेके, बाबा जी हमारे घर पे गेस्ट आए थे, सब अच्छा ले लीजिए। और रूप गोस्वामी चेहरा देख के सोचने लगे क्या है ऐसे, मैं इतना मधुकोरी किया, ऐसी लड़की बालिका को कभी देखा नहीं, कहाँ से प्रकट हो गई। फिर भी अच्छा है, बनाए भाव से। जब सनातन गोस्वामी टेस्ट करते हैं, अरे तू कहाँ से लाया है, ऐसा टेस्ट आज तक हमने खाया नहीं। बोलते ना, एक मैं भी सोच रहा हूँ, एक बालिका लेके आई, लाली, ब्रज में लाली बोलते हैं, एक लाली लेके आई, तो कहते हैं कि वो सुंदरता बताने लगते हैं,
रूप गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी सिद्धांत में परिपूर्ण थे। वो तुरंत कहते हैं, अरे तू राधा रानी से सेवा लिया, डांटने लगते हैं, उनको फटकारते हैं। हम सेवा कभी लेते नहीं है। हम लोग का ये गौड़िया वैष्णव का सिद्धांत है, सेवा देना है, लेना नहीं है। तो इस लोग सर्वात्म भावम विधन महिम इमाम तनिष्ठ। और देखिए वो भक्त, एक दूसरी शिक्षा मिलती है, भक्त कभी स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतंत्रता जो है, जिसको गर्व है, दम्भ है, वो फ्रीडम, उसको वो किसी मैं क्यों मानूं, क्यों बुझ। इतने महान भक्त महाभागवत वो स्वतंत्र डिसीजन ले सकते थे, लेकिन हमेशा उनकी मिनिस्ट्री वैष्णव ब्राह्मणों की नहीं थी। पूर्वज लिखते हैं, इसमें भी लिखा है वर्ष में, वैष्णव ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण का विजन सीमित है। ब्राह्मण का विजन सीमित है, वो अपने जीवन का उद्देश्य समझते नहीं। जब तक किसी व्यक्ति को अपने जीवन का पर्पज, उद्देश्य पता नहीं होगा, वो भ्रमित होता रहेगा। जैसे आपको पता ही नहीं है आप यहां से आपको जाना कहाँ है, आपको पता नहीं था, आप उधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे। जैसे किसी के आदमी का भ्रम हो जाता है ना, वो याददाश्त भूल जाता है, रास्ता भूल जाता है, तो वो घूमता रहता है, दिन भर चलता है, परिश्रम करता है, पर अपने उसी प्रकार से ब्राह्मण भी ब्राह्मण तक भ्रमित है, लेकिन केवल वैष्णव को पता है कि हमको भगवान के साथ प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाना है। इसलिए वो सबको गाइड करता है, क्योंकि हर जीव का गति भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम। वो हमारी गति कहाँ है? हम लोग चल रहे हैं, कोई नरक में चल रहा है, कोई स्वर्ग में चल रहा है। जो अतल बितल सुतल तलातल 84 लाख योनियां हैं, हम कितनी गति हमारी है, हम जाने। और बहुत लोग बना के रखे हैं, हर आदमी देखें अलग अलग, हमको वहां जाना, हमको वहां जाना, हमको वहां जाना, लेकिन भगवान कहते नहीं, हमारी तरफ गति होनी चाहिए। ये वैष्णव जानता है, क्योंकि वही अच्छा से राज्य कर सकता है, वही अच्छा से बिजनेस कर सकता है, वही अच्छा से अपना घर चला सकता है। पिता न सत्यात जननी न सत्यात। माता पिता तभी अच्छा हो सकता है जब उसको पता है कि हमारी गति कृष्ण है, तो अपने परिवार को उधर गाइड करेगा, अपने बच्चों को, हर चीज उसका परफेक्ट होगा, सब लोग संतुष्ट हो गए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भोक्तारम जगतस्ताम सर्वलोक। और जो ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण है पर वैष्णव नहीं है, तो इसलिए प्रभुपाद जी कोट करते हैं षट कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद। विशारद का बहुत बड़ा शब्द है, विशारद का मतलब बहुत उच्च कोट का ज्ञानी। विशारद बहुत महान, ब्राह्मणत्व का सब कुछ पता है, वेदों का सब कुछ पता है, लेकिन वो भी गुरु नहीं बन सकता है। गुरु का अर्थ है ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य। वो जीवात्मा की आंख को खोल नहीं सकता है। यही तो कहा भगवान ने अर्जुन से, ए अर्जुन तुम क्यों फंसे हो? त्रैगुण विषय वेदा निस्तर गुण भव अर्जुन। तुम बहुत प्रश्न कर रहे हो, क्या फायदा? ये तो वेदों के स्तर से ऊपर उठो, तीनों गुणों के विषय हैं। तो वैष्णव जो हैं वो वही गुरु बन सकते हैं, वही, क्योंकि उनके पास दृष्टि है, वो दूसरे की आंख को खोल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ देखें सर्वा, वो अलग अलग कितने प्रकार की सेवा करते थे। विधनन महिम इमाम तन्निष्ठा, तन्निष्ठा करते वैष्णव प्रभुपाद। और कहते हैं जो वैष्णव होता है ऑटोमेटिक को ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं, उसको अलग से सीखना नहीं पड़ता है, अलग से सीखना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ऑटोमेटिक। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्यों सबको ब्राह्मणी दीक्षा दिया? इसलिए वो वैष्णव था। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग नहीं करता है, कोई अपनी सोसाइटी में उसको जनेऊ संस्कार नहीं दिया जाता है, जनेऊ संस्कार नहीं दिया जाता है। ऑलरेडी ब्राह्मण है इसलिए उसको दे दिया, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, जप कर रहा है।
एक घटना है, उसी बात समाप्त करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में थे और रूप गोस्वामी रिटायर होकर के अपने भाई अनुपम के साथ प्रयागराज में गए। तो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए वल्लभ भट्ट आए, वल्लभाचार्य। वल्लभ भट्ट उस बहुत बड़े विद्वान थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे और ब्राह्मण थे, साउथ इंडिया पर प्रयागराज में रहते थे। और रूप गोस्वामी और अनुपम दोनों बैठे थे और जैसे वल्लभ भट्ट उनको प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनको आलिंगन किया। आलिंगन करने के जैसे घूमते हैं उसी समय रूप गोस्वामी प्रणाम करते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी को पता नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि ब्राह्मण है। चैतन्य महाप्रभु जिसको आलिंगन किए तो उनके शिष्य हैं रूप गोस्वामी, तो प्रणाम करेंगे ही करेंगे। प्रणाम किए। जैसे वो प्रणाम करते हैं उसी समय ये वल्लभाचार्य उनको आलिंगन करने के लिए आते हैं। वो दूर हटते हैं, ना 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 ना, मैं तो नीच जाति, नीच संगी, पतित अधम। ये रूप गोस्वामी की भावना था, मैं सबसे निम्न हूँ, मेरा संग जो है आप बहुत महत्व है। हालांकि नीच जात से नहीं थे, ब्राह्मण थे। नीच संगी, संग से व्यक्ति नीच हो जाता है। जन्म से कितना भी महान हो, अगर वो गलत संग करता है, जैसे आप कितने भी सत्यवादी ईमानदार के पुत्र हो, अगर चोर का संग करेंगे चोर हो जाएंगे। तो नीच संग से इसलिए अपने को लोग हीन मानते थे, संग के अनुसार पतित मानते थे। और जैसे बोले रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सॉरी चैतन्य महाप्रभु, वो परीक्षा लेना चाहते थे। किसकी? रूप गोस्वामी की नहीं, वल्लभाचार्य की। तो कहता अरे सत्य है, आप इतने पवित्र ब्राह्मण कैसे उनको स्पर्श कर सकते हैं? तो वल्लभाचार्य तो समझ गए, विद्वान व्यक्ति वो समझ गए। वो कहते हैं कि अरे, कहते हैं कि जिसकी जिह्वा पर हमेशा कृष्ण का नाम है वो कैसे पतित हो सकता है? सवाल ही नहीं है। पतित का अर्थ है जो नाम नहीं लेता है। यन नाम, कहते हैं जिसका नाम जो है, जिस जीवा पर जिसका नाम बैठा हुआ है, हम हमेशा नाम ले रहे हैं, वो पतित कैसे हो सकता है? चैतन्य महाप्रभु इतने उन्होंने देवहूति का श्लोक कोट किया, इतने खुश हो गए चैतन्य महाप्रभु। तुरंत कहते हैं शुचि सद भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जात कर्म से। कहते हैं भक्ति, शुचि भक्ति, कहते हैं जो अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस है, दग्ध दुर्जात कल्म से, संपूर्ण दुर्जय, जिसका गलत जाति में जन्म लिया है। गलत जाति में जन्म लेने का अर्थ है तो आपने पूर्व जन्म में बहुत काम किया है। दुर्जाति हो, रूप गोस्वामी कहते हैं बहुत पाप किया है, इसलिए आप काऊ ईटर में जन्म ले लिया, काऊ खाने वाले में, मांस खाने वाले, शराब पीने। कहते हैं ऐसे व्यक्ति का दग्ध दुर्जात, जो भक्ति है इतनी प्रज्वलित है, दग्ध प्रज्वलित डिवोशनल सर्विस, ब्लेजिंग फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस, वो सब पाप कर्म को जला कर राख कर देती है। इसलिए जब कोई नाम जप करता है, इसलिए उसको प्रभुपाद जी ब्राह्मणी दीक्षा देते थे। नाम और पूरी सोसाइटी में सिस्टम है, ऑलरेडी वो ब्राह्मण है, क्योंकि नाम जप कर रहा है समाज में सम्मान दिलाने के लिए। वो आवश्यक नहीं है, लेकिन समाज में सम्मान दिलाने के लिए वो प्रचार करना है, सब करना है, तो ब्राह्मणी जनेऊ संस्कार करते थे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमेशा हमको स्वतंत्र नहीं रहना है। भक्ति में स्वतंत्रता ही पतन का कारण है। हम हमेशा, ये भक्त का स्वभाव है। हमारे गुरु महाराज आते थे, यहाँ भी आते होंगे, कोई भी स्वतंत्रता से काम नहीं। जाओ प्रेसिडेंट को पूछेंगे, आदेश नहीं देंगे, पूछते थे। उनको आदेश देना होगा तो ही दूसरे ढंग से देंगे, है कि नहीं? तो ये वैष्णव का स्वभाव है। वो ऑर्डर, जैसे नहीं कि ऑर्डर देता है, नो ऑर्डर नहीं,
दर्शकों का स्वभाव है कि वो ऐसे कि वो हमेशा सलाह लेता है अपने भक्तों के से, इवन अपने डिसाइपल से भी सलाह लेता है वो, क्योंकि वो प्राइड नहीं है कि वो उसको पोजीशन, गुरु की पोजीशन मेंटेन करने के लिए नहीं होती है। गुरु की पोजीशन जो है भक्ति का दान करने के लिए होती है। ये वैष्णवता है। तो ऐसा नहीं कि पोजीशन मैं गुरु हूँ तो हमको हमेशा हम अपना व्यासासन लेके चलूँ, हम अपना ये लेके चलूँ, अपना ये लेके चलूँ। जैसे नहीं होते, प्रेसिडेंट होते हैं तो मर्सिडीज गाड़ी कार पहले चली जाती है, ये सब पहले चली जाती है कि नहीं भौतिक जगत में है कि नहीं। अब यहाँ तो पता नहीं, हमारे केनिया में पहले होता था ना, जब मोई प्रेसिडेंट थे, जब माया पहली बार दिखा इंडिया में, देखा नहीं था, मोई वेरी मोई जब रोड पे निकले, जितने भी लोग गाड़ी, सबकी गाड़ी खड़ी हो जानी चाहिए और सब अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए। गाड़ी में बैठ नहीं सकते हो, अगर बैठे गए तो अरेस्ट हो जाओगे। तो मैं बैठा था, तो हमको ड्राइवर बोला, अरे प्रो कम आउट। तो बोला क्या बात है इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, मिनिस्टर जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो मैं भी तब देखा कि सबके सब एक साइड गाड़ी पार करके खड़े हो गए। प्रेसिडेंट पास हो जाएगा, सब जब सब कुछ मिनिस्टर उसके साथ चले जाएंगे, इसके बाद तब बैठो फिर गाड़ी में फिर चलो तो ये गुरु ऐसा नहीं होता है कि अपना स्पेशल, यहाँ पता नहीं, वहाँ तो कुर्सी लेके चलते हैं। सत्य है। मैं कितना, अभी हमारे मित्र हैं ना, तो कितना उनके 5 सीमेंट फैक्ट्री ओपनिंग करने के लिए आए, अलग अलग प्रेसिडेंट। वर्तमान प्रेसिडेंट ओपनिंग करने के लिए आया तो मैं उसमें मुझे इनवाइट करते हैं, मैं जाता हूँ, क्योंकि पहले हर इस्कॉन का तरफ से प्रेयर होता है, 2 प्रेयर होता है, क्रिश्चियन का एक इस्कॉन का तो पहले इस्कॉन का होगा, बाद में क्रिश्चियन को होगा क्योंकि उनकी फैक्ट्री है। तो लवंगा प्रभु प्रेयर करते हैं, पर वो स्टेट हाउस से कुर्सी आती है, वो कुर्सी पे वही बैठ सकता है। कुर्सी आए, कुर्सी कवर रहेगी, जब प्रेसिडेंट को आना होगा इसके बाद वो खोली जाएगी कुर्सी, तब उसके बैठेंगे। तो गुरु कहने का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है कि अपनी कुर्सी, हमने महाराज को एक बार बोला, पास टाइम के अनुसार प्रभु जी को बता रहा हूँ आप लोग को भी, हमने एक बहुत सुंदर, मैंने द्रौपदी रानी को बोला, भाई महाराज के लिए एक अच्छा लोगों को मिले, फर्स्ट क्लास का रूम बनाओ, फर्स्ट क्लास का बनाओ। तो उसने बहुत सुंदर रूम बनाया, जो अभी महाराज का फोटो रखा है, अभी तो पुराना हो गया, जब बनाया था रियली ब्यूटीफुल था। तो अच्छी, बहुत अच्छा सोफा, चेयर, कुर्सी लाया, और एक कुर्सी तो सबसे अलग अच्छी बड़ी, और वहाँ से निकाल दिया। तो महाराज को लोग सब मिलने आते थे, महाराज को मैंने बोला, महाराज जी आपके लिए एक कुर्सी है, मैं इस पर कोई बैठता नहीं है। महाराज बोलते हैं, आई डोंट वांट टू मेंटेन माई चेयर बोलता मुझे अपनी कुर्सी को संभाल के रखना नहीं है महाराज ऐसे ही बोलते हैं। सो एनीवन कैन कम एंड सिट ऑन दिस चेयर आप देखो कितना सिंपलिसिटी है। और उधर ही, नाम तो नहीं लेना चाहिए, अभी वो ले लेता हूँ। अब नैरोबी में आएंगे, आप देखेंगे पीछे जब प्रसाद हाल में आप प्रवेश करते हैं ना, एक बहुत अच्छा से प्रभुपाद जैसे आल्टर रखा है, अभी भी ध्यान नहीं दिए होंगे, बगल में है। जो प्रसाद हाल में जाएंगे ना, जैसे व्यासासन प्रभुपाद जी का है ना, प्रभुपाद जी का है सेम, वो किसका है? भगवान महाराज का एकदम इतना अच्छा, जैसे ना प्रभुपाद का आल्टर ऐसे भगवान महाराज बनाए थे, कोई बैठता नहीं था, वो ही बैठते थे तो कहने का अर्थ है वैष्णव अलग है। तो यहाँ अम्बरीश महाराज के जीवन से शिक्षा मिलता है कि जितने मिनिस्टर थे, जितने भक्त थे, सबसे महान थे, लेकिन इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेते थे। इसलिए हम भक्तों को हमेशा अपने जीवन में कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हम हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यानी क्वेश्चन, यानी कोई आपको ज़्यादा समय ले लिया, हमारे साथ प्रसाद होना चाहिए। शाम का भी प्रोग्राम है, भगवान की झूला झूलाया जाता है।
कोई आसन पे हाँ सेम दामोदर वाला। वो आप उसा समझ रही थी। दामोदर वाला कितना ऑपुलेंस है, बहुत ही ऑपुलेंट है वो भगवान महाराज का था। प्रभुपाद जी का तो हाँ प्रभुपाद जी से कम नहीं। भी रखते हैं उसे सुभद्रा के। कोई क्वेश्चन किसी पर? Yeah, we should have questions. लेट हो गया हो तो फिर से आपका We can बहुत- have time for questions. आज का क्लास बहुत सुंदर था प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे। बस एक आप अम्बरीश महाराज का कह रहे थे कैसे वो सब कुछ भगवान के, तो उनका जो ऐश्वर्य था कभी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। तो मुझे याद आया प्रभुपाद जी ने एक शिष्य को नाम दिया अम्बरीश दास, बहुत फेमस है वो, हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन, बहुत वेल्थी फैमिली से। तो एक बार हम अम्बरीश प्रभु के साथ बैठे थे तो कोई भक्त आया था उनके पास कहने के लिए कि प्रभु जी हम ये ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं और ये ऐसे ऐसे प्रचार के लिए है और आप इसके एडवाइजरी बोर्ड पे बैठ सकते हैं क्या? तो थोड़ा लोग जानेंगे तो बात फैलेगा। तो एडवाइजरी बोर्ड पे बैठना मतलब कि आप थोड़ा धन दो नहीं तो कोई बुलाएगा ही। हाँ, तो प्रभु जी ने बहुत बहुत प्रेम से बोला और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बोला कि उन्होंने कहा कि देखो हमारा नाम काम में लेना है तुम्हें तो काम में ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम एडवाइजरी बोर्ड पे एडवाइस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक धन की बात है, हमने बहुत पहले अपना शरीर पे एक एक बाल प्रभुपाद जी के नाम से दे दिया। हम और किसी को नहीं दे सकते, हमारे जीवन में और कोई दूसरा है ही नहीं। और इतने उन्होंने कन्विक्शन के साथ बोला कि वो भक्त बिल्कुल पानी पानी हो गया और नमस्कार किया का हम आपके और प्रभुपाद जी की सेवा के बीच में कैसे आ सकते हैं। और जहाँ जहाँ जाते हैं ऐसी बोलते हैं क्योंकि वो उनके पास धन तो हर आदमी आएगा पूछने के लिए, लेकिन वो और वाकई में दे चुके हैं, वो सब कुछ दे दिया। सिंपली रहते हैं बहुत तो सब कुछ दे दिया, बहुत सिंपल। ये भक्ति का प्रभाव है, प्रभुपाद जी की कृपा है। ये पहले का श्लोक था ना कि वासुदेव तद भक्तेषु च साधुषु। तो ये जब तक ये साधुओं की कृपा नहीं होती है और भगवान की कृपा नहीं होती है, भक्तों की कृपा नहीं होती है, ये हो ही नहीं सकता है। ये संसार में तो 10 शिलिंग कोई नहीं छोड़ना चाहता है, 10 शिलिंग भी कोई नहीं छोड़, $10 भी अगर किसी को देना है बहुत पेन होता है। ये केवल ये बैराग की केवल भक्तों की कृपा से होता है। आपसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और आपने दूसरी हाँ प्रभु जी सॉरी सर, आपने एक बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि पहले अंग्रेजी बोल दूँ, हिंदी बोल दूँ या हिंदी? हाँ नहीं तो ना बोलूँगा वो बल्कि कि स्वतंत्रता का मतलब है कि हम किसी के ऊपर, किसी के नीचे, माने रियल इंडिपेंडेंस मीन्स वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। जो है हम कहते हैं ना कि यहाँ कहते हैं, यहाँ का हमने कहते हैं लैंड ऑफ फ्री, कि स्वतंत्र है। असली स्वतंत्रता ये है कि जब हम किसी के नीचे स्वतंत्र हैं। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं जो 4 नियम है बहुत कठिन एक तरह से रिस्ट्रिक्ट है। कहते हैं कि लोग कहते हैं वो दो 4 नियम रेगुलर प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, कि अगर उसको हम पकड़ लें तो हम बिल्कुल फ्री हैं सारे मेटेरियलिज्म से। नमाज खाना करना, माने वो इसी तरह जब उसका उदाहरण जब क्लास में देता हूँ कि जो देखिए जो छोटा बच्चा है ना, सबसे छोटा 2-3 साल का, बिल्कुल फ्री होता है। तो क्यों फ्री होता है? जानता है कुछ कर मेरी माँ पीछे खड़ी है और हम फ्री नहीं है। हम देखते हैं इधर कि यहाँ पुलिस वाला खड़ा है, यहाँ मैंने जो है डर के अंदर डर रहता है। बच्चा सब ज़्यादा फ्री होता, तो हमेशा छोटे बच्चे का उदाहरण देते थे, है ना? कभी ठीक बात है ना? थैंक यू, बहुत अच्छा। ना रियल डिपेंड ऑन कृष्ण। और पुरुषोत्तम, टेल मी सम योर रियलाइजेशन।
आपका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो आपने स्टोरी बताया था कि कभी सेवा नहीं लेनी चाहिए भगवान से, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो क्या विश्राम की जाए। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर परम। मैं अकेले इन 2 लोगों से 10 मिनट बात करूँ, 5-10 मिनट दीक्षा देना है, अभी इंटरव्यू नहीं लिया। ऐसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी बात करना आवश्यक। नहीं जरूर से। और पापा चिट्ठी भी लिख के आ रहे हैं, तो अभी तो कब बात करें?